पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ शुरू करांगे ਕਾਂਡ 12 ਤੋਂ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਾਲ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, इसने खालसे दा बीज नाश करनों फर्क नहीं कीता। इसदे इस जतन ते मेहनत नूं वेख के मुसलमान हाकम अगे ही सिखां दा खुरा खोज मिटा रहे सन, पर हुण तां सारे पंजाब विच पिछली अग दूणी हो मची। असल विच नादर दे हमले दे बाद खान बहादुर ने 1796 तो 1801 बिक्रमी तक सिखां दी कतलाम जारी रखी सी। पिंड दे चौधरीआं नूं हुकम सी कि जिथे सिख मिले मरवा दिओ ते घर बार जिम्मी जबत कर लो। गश्ती फौज इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਲੇਖਣੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਢੀ ਰੌਣਕ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਖੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਝਵਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ, ਅਰ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜੋ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਬਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਦ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਉਲਿਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕੀ ਜਾਣਨ, ਸਿੱਖ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫੌਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਰੜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੀਡੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਖਿਆਤ ਪੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੱਠ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ, ਰਾਤ ਗਿੱਦੜਾ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਅਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਕਤਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਨਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ, ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਧਾਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਅਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। 1802 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮੋਇਆ ਤੇ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤ ਚਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੀ ਲੜੀ ਫੇਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ।
जद सुंदरी घोड़े ते चढ़ के नट्ठी है तद पत्तन तो अग्गों दी किड्डी विथ पर होके निकल गई ते इसनूं खालसे दा दल किते ना मिलिया क्योंकि इसनूं रस्तिया दा पता मालूम नहीं सी। हुण कदम कदम ते यह संसा उत्पन्न हुंदा सी कि वैरी मेरे मगर आए कि आए। घोड़े चढ़ी जांदी मुड़ मुड़ पिछे वेखदी अर दिल विच शोक करदी कि कटार उस सिपाही दे ढिड विच रही जिस नूं पहाड़ी उत्ते मारिया सी अर तलवार उस अमीर नाशुकरे दे पेट पास सुट्टी कोई हथियार नाल ना लियाई जे कोई मामला आ बनिया तां की करांगी। फिर जी विच यह सोचदी कि जिस गुरु गोबिंद सिंह जी ने एडे कष्टां विचों कढ लिया है ओह हर वेले सहाई हन, मैं क्यों डोलां। इस सिंगणी दा जिगरा किहा हौसले वाला सी। पेटों भुखी सफर दी थक्की टुटी होई कैद दे असह कष्टां तो हुट्टी होई भरावां दे विछोड़े तो घाबरी होई उजाड़ बियाबान विच इकल्ली भटकदी होई गुरु जी नूं अपना सच्चा सहाई जाण के दिल दी कुदरती निराश करन वाली दिलझवी नूं विचार नाल जित रही है। कुछ दूर जाके अचानक एक छंब निर्मल जल दा दसिया जिस दे किनारे रंग रंग दे पंछी कलोल कर रहे सन। निर्मल जल वेख के सुंदरी ने बेवसी हो घोड़े तो उतर के उसनूं एक बूटे नाल बन्निया जरा सस्ता के इशनान किया अर कुछ जल छकिया फिर जपजी साहिब दा पाठ किया हजारे दे शब्द पढ़े प्रार्थना करदी होई अजेही मगन होई कि मानो पत्थर दी मूर्ति बैठी है। मुरगाबियां ते सारस अर कई तरह दे पंखी उसदे आले दुआले निरभै फिरन लग पए। इस दशा विच उसनूं कोई 4-5 घड़ियां बीत गईयां पर सुंदरी नूं एक पल जिन्ना भी ना भासिया क्योंकि यह इकागर होई सुखोपति ते आत्मानंद दे रणवे रंग विच टिक गई सी। दुनिया दे सारे दुखड़े इस वेले भुल गए सन। नाम दी खिच करके टिकी हुई सुंदरी आप सी या गुरु महाराज जी जिन्हां विच उसदी सुरत लग रही सी। इस दशा विचों सुंदरी दी जाग एक बंदूक दी गोली दी आवाज नाल खुली। अखां खुलियां तां की वेखदी है कि छंब दे दूजे कंडे 10-20 सवार शिकार खेड रहे हैं। उन्हां दी गोली सुंदरी दे कोलों दी एक गिठ भर फर्क ते सरर करदी लंघ गई सी अर इस दे नेड़े एक सुरखाब नूं फुंड गई सी। यह वेख सुंदरी घबरा के उठी छेती नाल घोड़े ते चढ़ी अर दूरों ताड़न लगी कि यह कौन हन तां पछाणिया कि ओह तुर्क हन अर उन्हां दे विच ओह हाकम भी है जिसने सुंदरी नूं विपता विच घत सट्टिया सी। सुंदरी कंबी फिर कुछ सोची अर दिल करड़ा करके घोड़े नूं अड्डी ला के हवा हो गई। शिकारी अपनी थां हैरान सन कि मुरगाबियां दे झुंड विचों यह किहड़ा राज हंस निकल आया। हरियाणगी दे मारे नाले बंदूक नाल फुंडे शिकार नूं हलाल करन दी नीयत धार के घोड़ियां नूं अड्डी ला के ओह उस पास आए ते नाले सुंदरी नूं नसदियां वेख के अपनी हरियाणगी मट्ठी करन लई पिछे दौड़े अर उसदे घोड़े नूं कुछ दूर जा घेरिया। हाकम ने सुंदरी नूं पछाणिया अर बेवसा होके बोलिया, शुक्र खुदावंद करीम दा जिने इस तरह मेल करा दिता। शुक्र है, लख लख शुक्र है। यह कहंदा ही घोड़े ते बेहोश जिहा हो गया। सारे साथी अचंबत खड़े सन। सुंदरी चार चुफेरियों घिरी हुई परेशान मन नाल अपनी नवी आपदा नूं वेख रही सी। हाकम ने फिर अखां खोलियां अर कहा, तेरा जन्म किन्ना काफरां दे होया, आ केही बहादरी है। घोड़े पर केही रान पटड़ी जमाई उड़दी रही है, मर्दां नूं परे सिटदी है। बेशक यह सुंदरी बेगम बनाउण दे लायक है, पर पता नहीं मैथों क्यों डरदी है। सुंदर तां मैं भी हां, खबरे इस गल्लों नसदी है कि इसदा मन इस तरह खुले फिरन नूं चाहुंदा है कि हरना वांग बना विच चौकड़ियां भरदी फिरां, पर मेरे मेलां विच परदे दी कैद हूं। ठीक है, ठीक बुझिया है, तुसी घाबरो ना, मैं तुहानू दिलों प्यार करदा हां, मैं शायर हां, जट गवार नहीं। चलो हुण शहर लै चलीए, यह कह के हस पिया। सुंदरी इस वेले बातचीत नूं नहीं सुन रही सी, अखां मीटी प्रार्थना कर रही सी कि हे अकाल पुरख, इस वेले थम्मा विचों बोहड़ो और मेरे धर्म की रक्षा करो। कोई आसरा आप दी कृपा बिना नहीं है। इस प्रकार दी प्रार्थना डूंगे और एकागर चित्तों अजिही निकली कि करतार दे चरनां विच अपड़ी और बंद अखां विच ही सुंदरी नूं अपने भरा और कुछ सिखां दा दर्शन होया कि घोड़ियां ते सवार चले आ रहे हन और आकाश विचों गुरु साहिब दी अपने तेज विच
खड़े इशारा कर रहे हैं कि ऐस रस्ते जाओ। सुंदरी बेवसी हो के चीक उठी, प्यारे वीर छेती पहुंच वीर वे ऐस पासे। ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਐਡੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਤਰਬਕ ਉਠੇ ਅਰ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਸੁੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡੇ ਹਨ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। 2 ਮੁਗਲ ਮੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਅਰ ਧਰਮੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਪੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। भैन भरा घोड़ियां तो उतर के अजिहे विछड़ के मिले कि दुहां दियां अखां तो मैं नीर वहे वह चले जियो। कांड 13 कल्लूकारा छोटा। सरदार शाम सिंह दा जथा नदी तो पार 5 कोह ते डेरे लाई बैठा सी अर सिंह भोजन दा आहर कर रहे सन। सरदार साहिब भी एक मैदान विच बैठे बलवंत सिंह नूं उडीक रहे सन कि अचानक बलवंत सिंह अपने साथियां सने सतवंती भैन नूं सही सलामत लैके पहुंच पिया। सुंदरी नूं वेख के शाम सिंह वड्डा गदगद होया अर सिर ते प्यार दे के पास बिठाया। यह खुशी दी खबर अख दे फोर विच सब खालसे ने सुन पाई अर देवी भैन नूं एक एक जना आण के मिलिया। सुंदरी भावें अपने धर्म ते निश्चेवान होण करके बड़ी हठी हो रही सी, परंतु इस कष्ट विखे रंग कुछ कु पीला पै गया सी अर चेहरे उतारे विखे हो गया। यह गल केवल धर्म कौर ने ताड़ी सी जिसदा लू लू सुंदरी दे प्रेम विच रत्ता होया सी। गल कादी? सुंदरी अर सरबत खालसे ने भोजन छकिया अर थोड़े चिर मगरों कूच कर दिता अते मंजल मार के कानूवाल दे लागे अपने भरावां पास झल विच जा पड़े। सरदार शाम सिंह दे अपड़न तो अगे सरदार करोड़ा सिंह, सरदार हरी सिंह, बाबा दीप सिंह जी शहीद, नवाब कपूर सिंह, सरदार सुखा सिंह, सरदार जसा सिंह, सरदार जय सिंह, सरदार चढ़त सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, सरदार हीरा सिंह ते सरदार गुरबख्श सिंह आदि जथेदार सरदार जो उस समय खालसे विच आगू सन अर वड्डे जोधे ते सच्चे सिंह सन अपड़ चुके सन। जद सरदार शाम सिंह पहुंचिया तद वड्डे आदर भा नाल की भरावां नालों भी अधीक स्नेह नाल मिले। सुंदरी दी विथ्या ते जस ते पंथ सेवा दा चर्चा भी सारे फैलिया होया सी। ਉਹ भी सबना नूं मिल के खुश होई। अज भावें सारे सिंह विपत काल विच इकट्ठे होए सन पर उन्हां दा प्रेम अजिहा सी कि जिस दी उपमा इस जगत विच मानू नहीं। पर सचमुच ये सारे एक माता पिता दी औलाद सन अर सब सके भरा सन। किसी भरा नूं किसी नाल वैर नहीं सी। सब दे सीने पंथक प्यार नाल भरे पए सन। छोटे वड्डे सारे एक दूजे नाल किसी गल दा वेरवा नहीं रखदे सन। गुरु दा प्यार दिल विच सी ते पंथ लई सब दे अंदर कुर्बानी भरी हुई सी। सारे बाणी दे प्रेमी सन ते उच्चे आचरण वाले सन। जथेदार सरदार तां सन पर बंदोबस्त दी खातर उंज तां अपने आप नूं वीरां दे वीर जाणदे सन पर सिंह जथेदारां दा सन्मान बड़ा ही करदे सन। जथेदारां दे हुक्म तो कोई सिर नहीं सी फेरदा। रात नूं फिर गुरमता होया। उस वेले बिजला सिंह जी सुन के खबर ले आए कि लखपत कोई लगभग लख सेना पैदल प्यादे अर तोपखाना लैके इस पासे दब्बी आ रहा है। खालसे ने सोचा कि साडा जथा 20-25 हज़ार होसी पर वह लखां दी गिनती विच हन। फिर साडे पास सामान कुछ नहीं, अन्न दाणे दा पूरा बंदोबस्त नहीं, की कीता जाए। इस वेले जो विचारां अर दलीलां ते दानाई दी बहस होई उस दी उपमा नहीं हो सकदी। नित दियां लोड़ां ते दुखां ने जो अकल उस वेले सिखां नूं सिखाई सी ते जो जान उन्हां विच गुरु आदर्श ने भरी सी उस दा हुलसाओ उन्हां नूं सके वीर बना के अमली अकलां सिखालदा सी। उस वेले बाणी दा प्रेम सी। जीवन उच्चे सन। पंथक प्यार अत दा सी। खुदगर्जी सिखां विच नहीं सी। पंथक कम्मां तो आपा वारदे सन। उस रात दा गुरमता कोई आपो विच दी धड़ेबाजी दी कमेटी नहीं सी। ना निज पेट पालू परम हितैशियां दी कुकड़ां वाली लड़ाई सी। ना अपनी निज दी दुश्मनी पिछे किसी भरा दा बेड़ा गर्क करन दा मंसूबा सी। ना कोई फूं फां ते दिखावे दा जलसा सी। उस वेले गुरमता सच्चे सिखां दी उस दानाई दे पूर्णिया उत्ते
तुरन दा आहार सी जो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने प्यारे पुत्रां नूं सिखा गए सन अर जिस नूं शौक है कि अजकल दे चुफेर गड़िए सिख भुला रहे हैं। उस वेले दे सिर पंथ दी आउण वाली दशा दा सारा निर्भर सी जो उस वेले दे गुरमते विच अजकल दे कई पालसी बाज अकल दे मट सिखां वर्गे सिंह हुंदे तां पता नहीं की सिखां दा भविखत की हुंदा। गुरु महाराज जी पंथ दे वाली सदा अंग संग हन अर सच्चे सिंघां दे हर वेले सहाई हन। गल कादी गुरमते दा सिट्टा ये निकलिया जो खालसे दा सारा दल कानूवान दे अपार बन ते झलां विच वड़ गया। रसद पानी जिन्ना कुछ इकट्ठा हो सकिया सी नाल अंदर लै गए। बाकी छंब दा शिकार ते बन दा शिकार अर वैरी दल दी लुट्टमार यह खालसे दा महकमा कमसरेट सी। बंदूक तीर डांगा नेजे तलवार यह हथियार सन। बन खालसे दा किला सी ते आपो विच प्रेम ते गुरु दा आसरा यह ताकत सी। लखपत सब पासियों सिखां नूं तक रहा सी। सारे लुकेवें दे थावां तो धक्के होए सिंह इधर आ रहे सन। इधर उधर लुके छिपे सारे इकट्ठे होए। लखपत ने उत्थे आके डेरा जमाया पर बन अजिहा सी कि विच लखपत दा जाना कठन सी। यह बन वड्डा संघना अर कंडेले बिरछां नाल भरपूर सी। इस दे रस्ते सिवाए गुरु दे शेरां दे होर किसे नूं मालूम नहीं सन। यह बन नहीं सी खालसे दा लोहमई किला सी जिस विच लखपत दीआं तोपां बेअर्थ सन। बाहर ही बैठा समय दी ताड़ करदा पर उल्टी पैंदी सिंह बहादुर रात नूं बण विचों शेरां वांग निकलदे अर लखपत दी सेना पर टुट पैंदे। हजारां दे आहू लाउंदे गोली बारूद हथियार खाना दाना लुटदे ते दिन होण तो अगे अगे फेर बन विच जा घुसदे। सामान घट सन पर तद भी सुंदरी धर्म कौर अर 8-9 होर जथिया दे वैद सिंह ते सेवक मलम पट्टी करन वाले घायल भरावां दी सेवा करदे। सिखां दे चुपौल ते रातां दे कीते हल्ले अजेहे अचनचेत हुंदे अर अजेहे जोर दे पैंदे कि दुश्मन दंग रह जांदे। जिस थां ओह पकियाई करदे अर तकड़े हुंदे उधर सिख नजर भी ना करदे। कमजोर पासे वल जां बिजली वांग कड़कदे। बिजला सिंह अर कई सुहिए दुश्मन दे दलां विच भेस वटा के जा निकलदे पर वैरियां नूं पता लगण ना दिंदे। एक दिन एक सुहिया फड़िया गया। लखपत ने उसनूं बिरछ नाल बनवा के जिउंदा छड़वा दिता। उस रात भाई बिजला सिंह इकल्ले ने खूब बदला लिया। अद्धी रात दे वेले दाऊ ताड़ के सलाहखाने नूं अग लाउंदा ही आप खिसक गया। उस अग ने बड़ा नुकसान किया। कई हजार दा गोला बारूद सड़ गया। अपने सिलाखाने दे फटन नाल अपने लश्करी भी बहुत मोए ते फट्टड़ होए। अगले दिन लखू पास चिट्ठी पुजी। सिख परजा दे सुख लई लड़दे हन तू जालम हो के अपनिਆਂ ਨੂੰ मारदा है साईं दा भौ कर। इस प्रकार कुछ समा बीतिया लखपत दी सेना दा बहुत नुकसान होया और खर्च भी बहुत उठ गया पर उत्थे परवाह भी की सी। पातशाही खजाना उस दी पिठ पिछे सी। इधर खालसे दा खाना दाना मुक गया। छंब दे जंतु भी मुक गए ते जंगल विच शिकार भी ना हुण लभे। हजारा आदमी खाण वाले शिकार कित्थों वधदा जाए। जंगल विच जो फल फुल कुछ माड़ा मोटा सी सो भी फतेह गजा गया। गोली बारूद मुक चलिया। उधरों लखू दी सेना भी रात नूं चुकन्नी रहन लगी। रात दी लुट मार विच भी ਸਿੰਘਾਂ दे हथ कुछ घट वध ही लगदा रुत भी करड़ी हो गई। यह वेला डाडे घबरादा सी पर दिल ना हारन वाला खालसा गुरु ते आस रखी जड़ां ते पत्ते खा के गुजारा करन लगा। एक दिन रात नूं गुरमता हो रहा सी कि भाई विनोद सिंह सुहिया आ पहुंचा। आखन लगा कि खालसा जी गुरु महाराज थम्मा विचों बहुत पए हन। करोड़ा सिंह ने कहा सुना किकू। ओह बोलिया तुहाडा मोदी पुकरिया है। दीवान कौड़ा मल उसने खुले गफे घल्ले हन। श्याम सिंह कित्थे हन। विनोद सिंह लओ मैं सुणाउंदा हां। दीवान कौड़ा मल नूं खबरां तां लाहौर दे दरबार विचों सब मिलदियां हन ना। हुण उसने सिखां दी तंगी दा हाल सुण के अनेका गड्डे आटे आदिक दे एक बाणीए दी सौंपणा विच घल्ले हन। बाणिया कंडी दा व्यापारी बन के पहाड़ां नूं जा रहा है। अज छंबो तो 2 मील परे उतरिया पिया है। रस्ते विच किसे नूं पता नहीं लगा कि कौन है। यह गल सुन के सरदार कपूर सिंह बोलिया बई यह बहादुर आदमी भी डाडा पक्का मित्र है। सदा औकड़ वेले पुकरदा है। खालसे दा वड्डा हितू है।
ਅਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਹੁੱਦੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਠਾਣਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਂ ਕਿਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾਜ਼ਮਪੁਰ 3 ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਗਈ, 3 ਵਾਰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਈ। ਚੌਥੀ ਵੇਰ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 2 ਕੋਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਉਤਰਿਆ। ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਕੀਰੀ ਭੇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਜਾ ਸਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਲ ਕੁ ਖਲੋ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲੰਗ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਰ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭੇ ਜਣੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾ ਲਊਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੰਜਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੁਰ ਹੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਰ ਅਚਾਨਕੀ ਦੀ ਸੱਟ ਤੇ ਬਿਖੜਾ ਦਾਉ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਔੜੇ, ਅੱਕ ਕੇ ਪਲੰਗ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹੁਰੀ ਝੱਟ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਭੇਸ ਵਟਾ ਜਿਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਠ ਬਦਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਐਸੀ ਪਈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਟਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਬੇਬਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਟੇਪਾ ਲਹੂ ਦਾ ਵਿਟੇ ਦੇ ਆਪ ਪਾਸ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਨਾਮ ਉਸ ਲਾਇਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪੱਤ ਵਧੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਹੂ ਦੀ ਵਿਟੇ ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੂ ਮੂਰਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਗੋ ਸਾਹ ਤੇ ਅੜਬ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਨਿਆਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਠਾਣੀ ਪਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਾਣੀ ਪਾਸ ਭੇਡ ਸੀ। ਜਠਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜੂ ਕਤਨ ਸੀ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਬਚਦਾ ਨਾ ਮੱਖਣ, ਤੇ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਭੇਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣ ਕੱਚਾ ਮੱਖਣ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰ ਭੇਡ ਤੇ ਮਣ ਮੱਖਣ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਸੱਚੀ ਦਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਪਾਸ ਨਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਆਈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਲੇ
छप्पड़ विचों 5 कोल फुल तोड़ लियाओ और एक अहदीए नूं सैनत करके मगर घल्लिया कि इन्हां नूं पैर ना धोण देवीं। जां दोवें मुड़ के आईयां तां एक टिंड पानी दी दवा के दीवान जी ने कहा कि जाओ पैर धो के हाज़र होवो। जद दोवें पैर धो के हाज़र होईयां तां दीवान जी ने दोहां दे पैरां वल गौर नाल तक्किया ते हुक्म दिता कि भेड वाली सच्ची है ते मैं वाली झूठी है। आप दे इस फैसले पर सब हैरान हो गए। जेड़े भेती सन सो जानदे सन कि भेड़ वाली सच्ची है, सो उस इलाके विच आप दे न्याय दी बड़ी धाक हुई। दीवान जी ने पैरां नूं तक के न्याय इस तरह कीता कि भेड़ वाली दे पैर बिल्कुल साफ हो गए सन ते उस दी टिंड मंगा के तक्की तां उस विच अजे पानी बाकी सी ते मैं वाली दी टिंड खाली सी। सारा पानी वरत के भी उस दे पैरां पर थां थां अजे चिक्कड़ लगा होया सी। बलवंत सिंह सच्ची मुच्ची न्याय दी खोज दा ढंग बड़ा अनोखा है सी। हाँ सच्ची विनोद सिंह जी, यह दसो कि ओह रसद पानी हुण साडे पास आवे किकुर। विनोद सिंह मैं तां बिजला सिंह एक हथकंडा कर आए हाँ। ओह यह कि बिजला सिंह राउल बन के लखू नूं जा मिलिया ते संगली सट के बोलिया कि खालसा अज राती दखण रुखों हल्ला करेगा और अद्धी रात नूं लखू ने अज सेना दखण रुख कट्ठी कीती है और मोर्चे बन के उदाले तोपखाना भी उसने बीड़िया है। उत्तर रुखों सेना खिंच के हेठ नूं वधेरे कट्ठी कीती गई है। सो हुण छंब दे कंडे कंडे अध मील तो वधीक विथ पै गई है। जेकर खालसा हिम्मत करके अन्न दे बोरे बोरियां हथों हथी चुक लियावे तद सोजले तो अगे बन विच सब कुछ अपड़ पऊ अर दिन होए ओह बाणिया लखू अगे जा फरियाद करू कि सिखा मैनू लुट लिया है। एक और दीवान कोड़ा माल ते किसी नू शक ना पाओ। सानू हुण यह चाल चलनी चाहिए कि जिस तो लखू नू शक पै जावे कि खालसे दा रुख दखण वन्ने पै रहा है ते अद्धी रात वेले एक टोला दखण रुख जाके बन विचों 10-5 बुछाड़ा गोलियां दियां दे के पिछे हट जावे। एक तां राउल दा कहना सच हो जाऊ, दूजे लखू दा गोला बारूद व्यर्थ जाऊ, तीसरा अज बिजला सिंह ने उस तंबू नूं अग लाउणी है जिस विच मताब रहिंदे हां। ओह फिर पहले ही फूके जाणगे। युद्ध वेले होऊ हनेरा कुप, इसलिए वैरी सज्जण मित्र ना पछाण सकणगे अर कई उस वेले आपो विच घट मरनगे। विनोद सिंह दी यह जंग दी चाल ते व्योंत सब ने सलाही। एक टोला तां दखण रुख जंगलों जंगल तुरिया। इस जथे ने इस आड़ दे टिकाणे रह के वाड़ झाड़ी। शत्रु जाग ही रहे सन। आ गए दा रौला मच गया। इन्हां ने कुछ चिर चुप रह के फिर एक शलक बंदूकां दी छड्डी ते उधर दा मट्ठा हुंदा रौला फिर चमक पिया। इस तरह वैरियां विच खलबली मचाउंदे सारा रुख उस पासे करी रखिया ते आप बाहर हो के ना लड़े। उधर अनेका सिंह सनदबद्ध हो छंब दे कंडे कंडे वहीर पा रातों रात खाना दाना लैके अपने बन रूपी घुरे विच जा वड़े। दिन होए लखू ने अपने अनेका सिपाही मोए डठे ते बाणीए दे लुट्टे जान दा मुकदमा भी पेश हो गया। गल की दीवान कौड़ा मल दे घल्ले होए अन्न नाल खालसे दे कई दिन चंगे लग गए। हुण फेर लंगर मस्ताना हो गया। अनेक सलाहां सोचण, रातां फिकरां ते बन नूं बन्नण दियां जुगतां सोचदियां बीतण, परंतु कोई राह ना निकले। हुण लखू ने जंगल कटवा लए। कई थां झल साड़े ते सेधां कर कर तोपां चलावे। भाई रतन सिंह जी भंगू करता प्राचीन पंथ प्रकाश लिखते हैं, तबे दीवान बिलदार बुलाए, बिकट ठेर तहां राह बनवाए, झल गाड़े तह फूक जलावै, सेध धरे तुर तोप चलावै, तब सिंगन के बहुत सताया, खाने नूं कुछ हथ न आया, भुखे होए सिंह आगे तुरे, चलों बाहर सिंह निकरे। छेकड़ जंग दे 2.5 फट सोच के खालसे ने यह फैसला किया कि भुख दे हथों मरन नालों हुण लड़दे भिड़दे निकल चलीए। यह ठाण के एक दिन अद्धी रात नूं सारा खालसा उपर नूं टुर पिया और सूरज चढ़न तो अगे पहाड़ां वल निकल गया। लखू ने भी इधरों सिखां दा पिछा ना छड्डिया ते उधर पहाड़ी राजियां नूं टाकरा करन लई लिख घल्लिया। सिंह हुण पहाड़ां दे रुख हो गए, कोई झलां विच उरार कोई पार। ओटा लैंदे रावी दे कंडे जा पुजे। हल्लाशेरी करके सिंह दरियाओ पार हो गए। पार सिंह अगे वधी जाण, इधर तुर्क सेना मगरों मगर उरार वधी आवे।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਨਹਿ ਡੇਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇ, कहूँ रता कहूँ दिन हूँ चले। नह सिंह ना कुछ रहे पल्ले, पार बरदारी बिन क्या चले। गोली दारू कहूँ पहुँचे नाही, का सो सिंह सो करे लड़ाई। शस्त्र काटत खुंड होए, रात दिवस सिंह नाही सोए। गई कमान टूट सो चलती, तीर मुके फिर मिले ना भगती। नेजे फल रहे दुश्मन तन में, काड़ू लबे सो नाही बन में। बिन दाने भये कोड़े माड़े, बिन बस्तर तन धूप सो साड़े। आटा दाना नहीं क्या खावे, पानी भी तह हाथ न आवे। दोहरा। अद्धी मौत मुसाफरी, सारी मौत सो भुख। ऊहा आहे दो मिली, एह भयो खालसे दुख। हुण सिखां पहाड़ तकाए कि अगे हिंदू हन, सानू सुख देणगे। बसोली वल नूं तुर पए। कुछ सिंह बसोली पुजे। भंगू जी लिखते हैं, अगे बसोली बहु परबती जुड़े, सिंह न समझी हम वल करें। कई सिंगा जा तिन में रले, तब तिन तुरत सो दीने मार। इस तरह जो सिंह पड़ल कटूहे वल गए सन, वो भी लुट्टे कुट्टे गए। जो बचे पछुता के मुड़े, तद चार चुफेरियों बला विच घिर गए। अगों तां पहाड़ी राजे राह रोक बैठे, पिछे एक लांब वल लखू दी टिड्डी दल सेना। दूजी लांबे हुण जल भरी नदी अपने पूरे बल विच ठाठा मारदी वह रही सी। इस वेले खालसे नूं कुछ ना औड़े कि हुण की बंदोबस्त किया जाए। हल्ला करके सिद्धे पहाड़ियां दा एक मोर्चा तोड़िया। कुछ सिंगां ने यह हौसला किया कि पहाड़ां दे उपर चढ़ चलीए, पर पहाड़ अजिहे तिखे सन कि बहुत जने डिगे अर मोए। फिर भी अनेकां ने पैदल यह हिम्मत की ते जड़ा बूटियां नूं फड़ फड़ के भारी बना विच चढ़ गए। एक होर जथे ने हिम्मत करके फौज अगे की अर नदी दे किनारे पहुंच के घोड़े दरिया विच ठल दिते। पर मंदे भागां नूं नदी इस वेले हड़ नाल उछल रही सी। वहण दे जोर नूं घोड़े ना सहार के बहादरां नूं रोड़ लै चले। इस जतन विच सरदार गुरदयाल सिंह जहे बहादुर जद डुब गए, तद किसी ने फिर दरिया दे ठल्लन दा हौसला ना किया। सारा दिन दुवल्ली पहाड़ी राजियां ते लखपतियां नाल युद्ध करते रहे। दुश्मनां दीयां तोपां अर गोले बारूद ने वड्डा नुकसान किया। इन्हां वीरां पास युद्ध दा समान भी थुड़ चुका सी। केवल धर्म दी आन सी जो इस वेले इन्हां नूं दुधारी तलवारां दे मुकाबले विच डोलन नहीं दिंदा सी। जद हर घड़ी दल दा कंगा हुंदा डट्ठा ते वैरी दल दा जोर पै गया, तद जथेदारां ने खालसा नूं सलाह करके कहा, सब हटो पीछे खालस जी, बांध कर सब गोल। एक वार वट कसीस बिसवे, 20 हल्ला बोल। बल धार असू विधायक है, दल लखो तुर्की धाए। जो निक्स जहे राज लेहे, मरे गुरपुर जाए। इस सलाह नूं मन के खालसा एक खंडाकार शक्ल विच इकट्ठा हो के यों कहर दा हल्ला करके पिया कि तुर्की सेना दे सीने कंबा दिते। जिकर तोरियां दियां वेलां नाल भरपूर खेत विच दी मोर पत्तियां नूं चीरदे निकल जांदे हन, तिवें खालसे ने बोलबाला कीता। केहर ज्यों पबकार दिते, उत सिंह परे 10 बंस किदाई। सिंह शहीद चहे सब होवन, तुर्क लरे निज जान बचाई। मार्स थार करे तलवारन, खोज फिरे लखु दुष्ट के ताई। राखत सिंगन को गुर यों जिम, दातन पांत न जीब रहाई। इस बिद एक भारी घमसान मच गया। चंद जिंकू परिवार विखे हुंदा है, यूकर सिंह वैरियां विच घिर गए, पर किस सूरबीरता नाल टाकरा करदे हन। जस्सा सिंह सरदार दे पट विच गोली लगी, पर की मजाल की हौसला हारे। हन्ने नाल पट नूं बन के जंग विच उसे तरह लड़दा रहा, मानो सट लगी ही नहीं। एक पासे फैजुल्ला खान नामे 12 हजारी सरदार सिखां दे आहू ला रहा सी। सरदार कपूर सिंह ने तक के इस वल कमान दी शिशत बद्धी। इस दशा नूं देख के यह तुर्क तलवार धूके उस पर पिया, पर इस दुष्ट दे मंसूबे नूं सुंदरी ने ताड़ लिता सी। घोड़ी नूं अड्डी ला के उस नूं आन विच ही तलवार दे वार नाल घायल करके घोड़ियों थल्ले मारिया। उधरों नवाब कपूर सिंह दी शिश्त ठीक बैठी। फैजुल्ला खां पार बोलिया,
इस प्रकार जाना तोड़ तोड़ के लड़दियां भारत भूमि दे मुक्ति दातियां नूं रात पै गई। यथा भयो कल्लूकारा भारा कहर कहारा, तह जूझ के हजारा सिंह तुर्कन को घाए के, या बिद करत जंग लरत पिरत सिंह मारत, मरत बहु हूल हाल पाई के, दोहों दिस तुर्क पहाड़िए, लरत जाहे मद दल सिंगन का, चलियो तब धाए के, या बिद लरत गए लाग दोई, तीन कोस सूरज अबयो छयो अंधकार काई के। जा रात हो गई, वैरियां दे दल ने विश्राम किया, सिंह भी एक लांबे डेरे ला बैठे, रहे खहे सिंह भुल भटके, सब उत्थे बेले विच की जिथे सुखा सिंह जी पुज गए से इकट्ठे हो गए। पर हाय शौक, सारे रात दिन दा कठन युद्ध जिस विच हजारा मारे गए, अणगिणत जख्मी होए, पेटों भुखे, दिन दे थके टुटे, घाओ चीसा मारदे हन, जख्म तराटा खांदे हन, फेर अजे आपदा सिर ते है, पर वाह अमृतधारी सिंह, हाय दी आवाज नहीं निकलदी, बाणियां दे पाठ ते वाहिगुरू शब्द दा उचारण हो रहा है। इस वेले सुंदरी, धर्म कौर, माई सद्दा, बीरा, तम्मो आदिक सारियां सिंगणियां फट्टे होए भरावां दे घावां पर तेल ते मल्लम दे फहे रख रख के पट्टियां बन रहियां हन। हरेक सिंह एक दूजे दी लोड़ पूरी करन दे यतन विच है। इत्थे एक पिंड नजरी पै गया। इस पर हल्ला करके खालसे ने कुछ खादा पीता ते कुछ आराम कीता सी कि सरदार शाम सिंह ते जस्सा सिंह ने, जो अजे घोड़ियां पर ही सन, पंथ नूं सलाह दित्ती कि सारे जख्म आकड़ जाणगे, भुख दा दबाव निर्बल कर दिओ ते सवेरे वैरी सानू हथों हथ मुका दिओ, लक बन्नो तां ऐस वेले तत्ते घाओ निकल चलीए। यह सलाह पका खालसे ने अद्धी रात वेले फिर चढ़ाई की। तुर्कां दी सेना कुछ सौं पा के मगर आई, पर जो झल विच वड़िया सिंगा मार लिया ते जो चलों बाहर निकलिया उन्हां मार लिया। हुण खालसे ने मता पकाया कि हेठां नूं नੱਠਦੇ चलो, पर वैरी नाल डट डट के लड़दे पैर पिछे पाई चलो। इस तरह खालसा दल झलां दी आड़ विच हेठां नूं वधदा दिन होण तो अगे अगे एक संघणे झल विखे धस गया ते जा विश्राम कीता। पर मगरे मगरे लखपत इत्थे भी आ पहुंचा। पहलां तां झल दे बाहर डेरा कर दिता, फिर एक डोल सोची, वगारी लोक फड़ के अते देश दी रैयत लालच दे के इकट्ठी कीती ते बंदूकां दे सेले दे के झल विच वाड़ दिते कि तुसीं ਸਿੰਘਾਂ नूं लुੱਟ कुट लओ ते मार दो। ਉਹ बेले विच आ वड़े ते लगे तंग करन। हुण सुखा सिंह ने कहा कि भाई है तां इह मुल्क है, पर शस्त्र लैके आ पिया है, हुण अगों चुप कीती तां मारे जावांगे, इन्हां नाल युद्ध रचाओ। सो एक तुलवां हल्ला जद बोलिया तां सब उठ भज्जे ते खैड़ा छुट गया। उन्हां दे शस्त्र ते घोड़े खालसे दे हथ बहुत आए। अगे रामे दा इलाका आ गया। वो खालसे दा वैरी सी, सो दरिया टप्पना ही उस वेले दनाई सी। उत्थे फिर खालसे ने दब्बा दे तुले बना के उपराले कर करके दरिया टप्पिया। दो चार घड़ियां पार ठहर के पिछलियां नूं नाल मेल लिया, पर जो होर मगरों आए कई नदी विच रुड़े। हुण खालसा इस पार खुले देश विच आ गया, पर अगे दरिया दी बरेती टप रही सी। दुखी खालसा मारू थले विच काबू आ गया। पिंडे नूं झुलसने वाली लूह वगे, पैरां नूं लूहण वाली रेत ठाठा मारदी दसे, बिरछ बूटे दा मुश्क ना लभे, सवार तां अगे तुरे जाण, पैदलां दा बुरा हाल, अर जिन्हां दियां जुत्तियां भी गुआच चुकियां सन, उन्हां लई तां मौत आ ढुकी। कपड़े पाड़ पाड़ पैरां नूं बन्नण, भरावां नाल कोई पैदल 10 कदम घोड़े ते चढ़े, फिर दूसरा भरा चढ़े। इस तरह दुख आपो विच वंडदे साडे ਜਿਹੇ ना शुकरियां नूं जुल्म तो छडाउण लई अपने शरीर पर कष्ट झल के बहादुर पर दुखां नाल पीड़ित सिंह रेत बला लंघण लगे। हुण सिंह दुख भोगदे माझे विच जा अपड़े, पर इत्थे आराम नहीं सन कर सकदे क्योंकि लखपत दे मगर मगर आउण दा डर सी। सो सिंह दब्बी गए, ब्यासा टप्पे, फिर धाऊ धाई सतलुज पार हो मालवे विच वड़ गए। हुण लखपत निराश हो लाहौर मुड़ गया,
पर पड़ोल तो कठूहे आदि थावां तो बहुते सिंह थके टुटे जख्मी ते होर जो पकड़े गए लाहौर लै आया सी। इन्हां नूं इसने दिल्ली दरवाजे दे बाहर मरवा दिता। लखपत शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ कई ਗੱਡੇ लाहौर लिआया सी, जिन्हां नाल खूह भरे ते बुरज उसारे गए सन। उत्थे तदों घोड़ मंडी सी, हुण लंडा बाजार है ते शहीद गंज भी है। पंगू जी लिखते हैं, पास नवाब गए थे सारे, उनके सीसन बुरज उसारे। उधर मालवे अपड़ के खालसे दे जथे अड अड पिंडी खिंड गए। मालवे दे ਸਿੰਘਾਂ ने अपने पीड़ित भरावां दी वड्डी आगत भागत की, जख्मियां दे इलाज होण लगे, दुर्बलां दी पालना होण लगी। इस प्रकार लखपत ने जिन्नी पंथ दी हानि करके उसनूं जर्जरा कर दिता सी, उन्हां मालवे दे ਸਿੰਘਾਂ ने अपने भरावां दियां लोड़ां पूरीआं करके उन्हां नूं फेर बली कर दिता। फूल महाराज दे इलाके विच सरदार शाम सिंह दा जथा उतरिया। कपूर सिंह दा विजोके जस्सा सिंह ने जैतो के डेरा करके इलाज कराया ते 5 कुछ महीनियां विच टंग वल हो गई। जो सिंह पहाड़ी चढ़ गए सन, भेस वटा वटा के इत्थे खालसे नूं आ मिले। सिंह समा पा के फेर ਤਿਆਰ बर ਤਿਆਰ हो गए। यह समाचार जेठ संमत 1803 बिक्रमी विखे होए सन और यह युद्ध छोटे घल्लोकारी दे नाम तो प्रसिद्ध है। कांड 14वां। कई इतिहासकारां दी राय है कि 8,000 दे लगभग खालसा इस जंग विच शहीद होया। कोई इस संख्या नूं 10-12 हज़ार तक दसदे हन, पर रतन सिंह जी लिखदे हन कि कोई 40 कोई 50,000 दसदा है। गिणती का ठीक पता नहीं, पर इन्हां बहादुरां दी यादगार सिक्खी ने भी कायम नहीं की। जगत दियां होर कौमां ने अपने वड्डियां दे राई जिन्ने उपकार भी मेरू करके मन्ने ते यादगारां बनाईयां, पर धन हन सिख जिन्हां ने परबतां जिड्डे उपकार चेते भी नहीं रखे, सगों अपना इतिहास भी नहीं संभालिया। इस युद्ध दे मगरों काबल ते दिल्ली दे पातशाहां विच लाहौर दा इलाका दुखसमी वहुटी वांगू दुखी रहा। इसका समाचार यह है कि लाहौर का नवाब जकरिया खां सी, जिसका प्रसिद्ध नाम खान बहादुर सी। सिख खां सददे सन। यह 1726 ईस्वी के लगभग लाहौर का सूबा होया ते 1745 ईस्वी मर गया। फिर इसका पुत्र याहिया खां लाहौर का सूबा होया ते दूजा पुत्र शाह नवाज खान मुल्तान का हाकम बनिया सी। घल्लूघारा याहिया खां दे समय जेठ 1803 बिक्रमी विच मुक्का सी। हुण शाह नवाज ने की कीता कि लाहौर पर चढ़ाई करके फतेह पाई ते आप लाहौर का मालक बन बैठा ते अपने भरा याहिया खां नूं कैद कर लिया। पर याहिया खां किसे हिकमत नाल कैद विचों निकल के दिल्ली पुज गया। यह गल सुन के शाह नवाज नूं पिस्सू पए कि हुण दिल्ली दी पातशाह दी फौज आके जरूर मेरा कंगा करेगी। इस करके उसने काबल दे पातशाह अहमद शाह दुरानी नूं चिट्ठी लिखी कि आप लाहौर आके मैथों राज लै लवो। यह सुन के दुरानी पातशाह तां काबलों तुर के पसौर आ पहुंचा ते उधरों दिल्ली दे पातशाह ने शाह नवाज नूं लिख घल्लिया कि असीं तैनूं लाहौर दा नाज़म अपने वल्लों प्रवान करदे हां, तू आ रहे दुरानी पातशाह दा टाकरा कर। इस पेच विच आके शाह नवाज ने दुरानी दा टाकरा कीता, पर हार खा दिल्ली नूं नस गया। दुरानी दा यह हल्ला पो 1804 बिक्रमी विच होया। लाहौर नूं बेतरस दुरानिया ने बुरी तरह लुटिया ते इस पर कब्जा कर लिया। लखपत जद अपनी रकम दे चुका तां उसदी गुड्डी होर चढ़ी। लाहौर दा बंदोबस्त करके अब्दाली आप दिल्ली जितन नूं अगे तुरिया। सरहंद तो उचेरे माणू पर कोल दिल्ली दी फौज नाल लड़ाई हुई, जिस विच दुरानी हार के अपने देश नूं नस गया। कहंदे हन कि दुरानी जांदा होया लखपत नूं लाहौर दा सूबा बना गया, पर लाहौर दा राज दिल्ली दे पातशाह वल्लों मोयनुल मुल्क नूं मिलिया, जिसने कि अब्दाली नूं भांज दित्ती सी ते जिसदा नाम मीर मोयनुल मुल्क वजिया। एक जरूरी फुटनोट, इसदा असली नाम मोयुनुद्दीन सी। इसदा पिता वजीर कमरुद्दीन सी ते मुहम्मद शाह रंगीला पातशाह प्यार नाल इसनूं मन्नू मन्नू कहा करदे सी ते वड्डी आयु तक पुज जाण ते भी दरबार विच इसे नाम नाल प्रसिद्ध रहा। मानूपुर दे कोल अब्दाली नूं हार देण तों बाद लाहौर दा सूबेदार हो के इसनूं मीर
ਮੁਇਨ ਉਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ कैद किया गया और उस पर 30 लाख का जुर्माना लगा। 22 लाख तो उसकी जायदाद कुर्क करन नाल वसूल होया ते बाकी बदले सरकारी कैद विच पाया गया। फिर दीवान कौड़ा मल ने चौखी रकम दे के उसनूं मानो मुल लैके अपने काबू किया। दीवान कौड़ा मल की पत हुण नेक नीयती ते हर तरह की प्रवीणताई करके दरबार विच बहुत वध गई सी। हुण लखपत का अंत दसीए की होया। दीवान कौड़ा मल ने लखपत नूं करड़ी तरह कैद किया और खालसे नूं चोरी खबर भेज दिती कि अपने वैरी की भुगत सवार लो। सो सिखां ने उसनूं उसदे मंद कर्मां दा जोग दंड दिता। बेदोशां नूं कतल करना, हज़ारां नूं तसीहे दे के मारना ते कई विधवा ਸਿੰਘਣੀਆਂ, अनाथ भुजंगियां और होर बेगुनाहां दा लहू डोलना कदी व्यर्थ नहीं जा सकता। लखपत की मौत बड़े कष्ट वाली सी। लखपत 6 महीने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ कैद विच रह के मोया, पर दंड दाते उसदे कीते जुल्मां दी पड़ोपी नाल उसदी गिणती कर रहे सी। पापी के मारने को पाप महाबली है। पंथ प्रकाश किरत ज्ञानी ज्ञान सिंह विच लिखिया है। दुख गह अत लखू मरियो, पाछे कौड़ा मल, करी दीवानी धर्म की, लीनो जस जग पल। जेठ 1803 घल्लूघारे तो बाद पो 1804 तक भी खालसा सुखी नहीं होया। पर दुरानी जिस वेले लाहौर नूं लुट-पुट वीरान करके सतलुजों पार होया, खालसा जी झाड़ झाड़ विचों निकल पए ते लगे अपने बदले लैण। यह वेला खालसे लई पुरबीदा सी। मालवे विच पलके सिंह बग्गे शी वांगू खड़े हो गए सन अते इन्हां दी फौजी गिनती 20,000 नूं फेर अपड़ पई सी। चाहे कितने ही कष्टां नाल जंगा जुद्धां ते जुल्मां विच सिंह मारे जांदे, पर इन्हां दी गिनती फेर पूरी हो जांदी। इन्हां दे कुर्बानी दे जीवन दा जादू, इन्हां दी पवित्रता ते बंदगी, इन्हां दा देश नूं सुतंत्र करन दा चाओ ते हाकमां दे जुल्म होर प्रेमी प्रेर के लै आउंदा ते अमृत दा प्रवाह जारी रहिंदा। लाहौर लई जद दिल्ली ते काबल दे मालिक लड़ रहे सन, खालसे ने वैरियां तो बदले लैणे आरंभे। जद अहमद शाह दुरानी हार कह के नसिया, तद खालसे ने उसका पिछा भी किया ते जेहलम तक पिछा करके लई जांदे देश दे माल विचों चौखी लुट मार मोड़ लती। फिर अमृतसर आ इकट्ठे होए और गुरमता किया, जिसका सिट्टा यह निकलिया कि रामसर उत्ते जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ बनी गई सी, ਸਿੰਘਾਂ ने करौनी बनाई दुश्मन तो रखिया लई। जो छोटी छोटी कच्ची कंध खड़ी कर लई जाए उसनूं रौणी आखदे हन। यह एक फौजी सिर लुकाउणी हुंदी है। इसनूं मगरों गढ़ बनाया गया सी और इस दे गिरदे खेत बीज के राम रौणी नाम धरिया। मीर मन्नू हुण पंजाब दा नवां सूबा आया सी। ਇਹ भी सिखां दे मगर हथ धो के पै गया ते इसने भी बड़े अत्याचार आरंभ किए। अदीना बेग की सलाह नाल सिखां दीयां गिरफ्तारियां आरंभ हो गईयां ते घोड़ मंडी लाहौर विच कतलामां लगियां होण। इधर देश विच सिखां विरुद्ध यह कहर जारी करके मन्नू ने राम रौणी सर करनी चाही ते रौणी सर करन लई उसने अदीना बेग नूं थापिया। खान अजीज सदीक बेग आदि नाल दिते ते कच्चा किला सर करन लई अमृतसर घल्लिया। खालसा भी आकी हो बैठा। बाहर दे ਸਿੰਘਾਂ ने यह खबरां सुन के दाणा घाह पट्ठे आदि भरावां नूं गड्डियां दे गड्डे भर के घल्ले, पर बाहरली फड़ो फड़ाई ने रोकां पा दित्तियां। तुर्क सेना ने रौणी दे उदाले घेरा कत्तिया। किन्ना समा इस गल नूं बीत गया, पर तुर्कां तो कुछ खोहण ना खुथे। सिख अंदरों ही ओह वाड़ा झाड़न की चेत दियां होलां वांगू वैरी दी सेना भज्जे। किसी दिन खालसा बहादुर बाहर निकल के भी होला खेड़ जावे और तुर्कां दी लुट नाल हथ रंग के फिर किले विच जा वड़े। एक जरूरी फुटनोट, इस रौणी नूं मगरों जद मीर मन्नू ने इसका कुछ हिस्सा ढा दिता सी, ਸਿੰਘਾਂ ने फिर किले वांगू बना लिया सी ते नाम रामगढ़ धरिया सी, जिस दियां निशानियां हुण सब उड़ गईयां हन, पर अजे भी मंदिर दी थां ते उचाई दसदी है कि इत्थे जरूर किला हुंदा सी। शक है कि यह भोआ हुण खालसे दी अणगहली दे कारण बहुत हथों निकल चुकियां हन। फुटनोट समाप्त हुंदा है। जस्सा सिंह नामे एक सिख बड़ा बहादुर खालसे विच सी।
ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਧੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪਾਸ 100 ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਸਦ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਢੀ ਔਕੜ ਆ ਬਣੀ। ਕਈ ਢੰਗ ਸੋਚਣ ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ। ਛੇਕੜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈਏ, ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਧਰਮ ਭਾਵ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਊ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮਰੂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ। ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਲਵੀਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੌਣੀ ਦਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਾਮਗੜੀਏ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤਦੋਂ ਨਾਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਢਾਹ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1814 ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਟਾਲੇ ਆ ਕੇ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਉਸਨੇ ਮੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਹਾਸਰੇ ਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਣੀਆਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਕੰਨਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਤ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਕਹਾਏ। ਫਿਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਨਮ ਦਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਦਾਇਆ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ 1805 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਥੇ ਲੜੇ 5 ਪੈ 1800 ਸਾਲ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਖੱਤ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜਵਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਖਾਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤਾੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੌਜ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨੂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਮਨਸਬੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਬੋਹੜੋ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਨੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੰਨੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਖੂਬ ਵਧੀ। ਲਗਭਗ ਵਰੇ ਕੂ ਦੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਦੁਰਾਨੀ ਫੇਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੱਘਰ 1805 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1749 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੰਨੂ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੋਧਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਮੰਨੂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝ ਕੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ
14 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹਿਆ। ਸੋ ਦੁਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨੂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਨਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਤਲਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਘੂਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ 10,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਲਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਮੱਘਰ 1805 ਵਿੱਚ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1806 ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਘਰ ਤੋਂ ਸਾਵਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਪਰ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਲਖਪਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਸੱਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ 1806 ਤੋਂ 1807 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।